All right, guys, good. Thank you very much for joining in. Wish you a very, very, very good evening. And today we gonna be jumping on onto the SBL PC material for the December 2025 attempt. Remember, guys, I initially thought of that I'll be able to cover this entire analysis in one session, but considering that there is a lot that I need to cover today, I would be taking one more session tomorrow on the pre-scene material itself, wherein I would like to highlight few of the things from the company's perspective. Today we'll be covering the industry and of course industry level issues, and tomorrow we'll be talking onto the company level issue. That is something that we really have at our hand. All right. So without wasting any time, guys, let us deep dive and let's just start the proceedings of the day. We are going to be starting off with the analysis on the strategic business leader December 2025 attempt pre-sealed material. One thing that is uh, I would say that should be a stepping stone for all of us to really ensure that we are not missing on it from the examination perspective is that how do we use the pre-sealed material. बहुत सारे लास्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर एग्जामिनर रिपोर्ट जो इशू हुई हैं उनके अंदर ये बात बहुत बारी हाईलाइट भी करी गई है दैट जो प्री सीन मटेरियल है इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड from the perspective of preempting the answers, and we should not have this thing in our mind that अगर प्री सीन मटेरियल ये है तो एग्जाम भी सारा का सारा इसी में से आने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है. प्री सीन मटेरियल is the base is the information that is something that you should be knowing and having at the back of your mind. क्वेश्चन तो एग्जाम में एग्जिबिट की फॉर्म में आने वाले हैं. आपको इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव प्री सीन मटेरियल से मिल जाता है, आपको कंपनी का पर्सपेक्टिव प्री सीन मटेरियल से मिल जाता है. बिल्कुल ठीक. ये आप समझ के जाओगे, ये आप अपने दिमाग में रख के जाने वाले हो एग्जाम रूम के अंदर. आप एग्जाम रूम में जब घुसोगे तो आपको वहां एग्जिबिट्स मिलने वाले हैं जो एक सिचुएशन को समझाएंगे, एक प्रॉब्लम को समझाएंगे और उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब जब वो क्वेश्चन के मैं आंसर लिखने वाला हूँ, तो मैं उन एग्जिबिट्स को ऑफ कोर्स पढ़ के कोरिलेट करूंगा अपने में, जितने भी मेरे पास एग्जिबिट वहां होंगे. Over and above that, I would be including the information that I have seen in the pre-seed material, whether it is from the industry perspective or whether it is from the company's perspective. Do not forget that, guys, that it is very important that we are mixing up all of the information together and taking the benefit of all of the information or the content that is being shared with us while answering our questions in the exam. Very important that we should do not overly rely on the pre-seen material and not at the same time overly rely on the exhibits that we get to see in the exam. We have to mix the information. We have to take the relevant information from all of the places and then start answering the questions there. Do not forget, many of the times students does this mistake that how do we really be using the pre-seen material, or what exactly should be our strategy to use the pre-seen material, or what should I be doing in the exam room. हमें एग्जाम रूम में इसी तरह से तैयारी करके जानी है. बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है. Now switching on, guys, let me just, and all of that you're seeing out here would be part of your SBL pre-seen material deck, or I would say content that is being issued by ACCA. आप उसको रेफर कर सकते हो. This deck I will really be sharing with all of you so that this becomes handy to you, for the purpose of I would say digesting the information that is needed for you to really hit the exam in the best possible way. All right. Moving on. Let's start off, guys, in terms of the questions that we really have at our hand. We're talking about the sign the hotel industry. And this is the beauty of the strategic business leader exam, guys, that I personally feel and I relish at times that ये एग्जाम एक्चुअली में ना आपको इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है जो एक्चुअली में हमने शायद वैसे कभी सोची भी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी कवरिंग टुडे इन द कमिंग, लेट्स से व्हाटएवर टाइम, देयर इज a lot that you will learn from the hotel industry perspective जो शायद आपको वैसे नहीं पता होता unless and until you are part of the hotel industry. बट जैसे ही होटल इंडस्ट्री का क्वेश्चन आया या आएगा आपके सामने, कुछ चीजें आपके दिमाग में फटाफट से आ जानी चाहिए, which is कि होटल इंडस्ट्री is impacted by seasons. Hotel industry is impacted by inflation.
कितना पैसा जनता के पास है। होटल इंडस्ट्री इज इम्पैक्टेड बाय एनी नेचुरल कैलामिटी लाइक कोविड। No, hotel industry is impacted by any kind of regulation that the regulators may bring onto the table. And it is also dependent on the sentiment. For example, war-related sentiment होता है तो होटल में कोई नहीं जाना चाहता है and so on so forth. So there are various elements that impacts the hotel industry on the whole. ये चीजें ना शायद मुझे पहले से दिमाग में रख लेनी चाहिए। जैसे ही मेरे मेरे को पता लगे कि किस इंडस्ट्री का क्वेश्चन आने वाला है या आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर शू इंडस्ट्री का क्वेश्चन होगा तो मैं ऐसी बात शू इंडस्ट्री से रिलेट करूंगा। आज की बात करूं मैं दिसंबर 2025 की बात करूं मैं तो जो क्वेश्चन है क्योंकि वो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो ये सारी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग द प्री-सीन मटेरियल एंड मैं अपनी असम्पशन को करेक्ट करता चलूंगा या मैं और वैलिडेट करता चलूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट द प्री-सीन मटेरियल रियली सेज अबाउट दैट। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। Let's start off guys. We have a question which is of Level PLC which is a hotel chain. बिल्कुल ठीक। It operates in the country of Iceland. बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। इस पीपीटी के बाद प्री-सीन मटेरियल को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और ये पीपीटी आप सबके साथ शेयर हो जाएगी तो घबराने की जरूरत तो बिल्कुल है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। Level owns and operate 35 high quality 4-star hotels located throughout Iceland. तो मैं 4-स्टार होटल चेन की बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास 35 हाई क्वालिटी होटल्स हैं जो कि सारे 4 स्टार्स हैं। तो मैं इफेक्टिवली मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो 4-स्टार होटल्स की चेन लेके चल रही है। आई एम ओनली थिंकिंग टॉकिंग टू माई सेल्फ गाइस in terms of how I should be assimilating the information and of course digesting the information that I really have. All right. The primary target market is the leisure guest. अच्छा जैसे उसने लेजर गेस्ट बोला ना मेरे दिमाग में ना कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए विच इज कि गेस्ट जो होटल में होंगे वो किस किस तरह के हो सकते हैं। गेस्ट हो सकते हैं होटल में बिजनेस गेस्ट हो सकते हैं जो रहने नहीं आए शायद सिर्फ सुबह शाम काम करने आए हैं जो आए अपना मीटिंग करी और चले गए ऐसे गेस्ट हो सकते हैं। ऐसे भी गेस्ट हो सकते हैं जो बिजनेस मीटिंग्स के लिए आए हैं जो सुबह आएंगे एक रात रुकेंगे अगले दिन अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे चले जाएंगे। कुछ ऐसे गेस्ट होंगे जो लेजर के लिए आएंगे जो आएंगे 3 4 5 दिन छुट्टियां मनाने आएंगे गोवा गए थाईलैंड गए व्हाटएवर राइट यू आप गए आपने 3 4 5 दिन बिताए एंड यू कम बैक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के गेस्ट यहाँ रहने वाले हैं जिस मैं जिस जिस जगह की बात कर रहा हूँ मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ मेरी प्राइमरी टारगेट मार्केट लेजर है। अगर मैं लेजर की बात कर रहा हूँ तो मेरे को ये बात फटाफट से शायद समझ में आ जानी चाहिए कि मेरी डिपेंडेंसी रहेगी लोगों के डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। मेरी डिपेंडेंसी रहेगी कंट्री कैसा कर रही है उसके ऊपर, कंट्री के कैसे हालात है उसके ऊपर, नेचुरल कैलामिटी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी रहेगी बिकॉज़ ये सारी चीज़ें अगर फेवर में होंगी, तभी तो भाई आप लेज़र के लिए जाओगे, नहीं तो क्यों ना जाओगे? नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। अगर आपका एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं है, लेट्स से यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो यूक्रेन में ऐसा कौन जन होगा जो लेज़र के लिए जाएगा? नहीं जाएगा, राइट? बिकॉज़ आपके जो कंडीशंस हैं, जो फेवरेबल नहीं है फॉर द लेज़र एक्टिविटी और इसलिए आप शायद नहीं जाओगे या कोई नेचुरल कैलामिटी भी हो रही होगी, लेट्स से बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया या कोविड आ गया व्हाटसोएवर, तो भी लेजर एक्टिविटीज ऑलवेज टेक द बैक फील्ड। तो मैं उस बिजनेस में हूँ जो इम्पैक्टेड रहेगी इन सब चीजों से। ये सारी चीजें ना मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जानी चाहिए व्हेनेवर ए क्वेश्चन लाइक दिस रियली गेट टू यू गेट टू सी इन द एग्जाम। बहुत मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों सोचने को बोल रहा हूँ, बिकॉज जब आप एग्जिबिट भी पढ़ रहे होते हो ना, एग्जिबिट को पढ़ते समय भी ना आपका जो दिमाग है ना वो चलना शुरू हो जाना चाहिए। क्या प्लस होंगे, क्या माइनस होंगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। द मोमेंट यू वुड स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन ना आंसर करने की अच्छा सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बेटा एग्जाम में। आप अच्छे से आंसर कर पाते हो, आपके पास पॉइंट्स ज्यादा होते हैं आंसर करने के लिए। इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली थॉट प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए और नहीं शुरू होता तो बेटा शुरू करवाओ उसको, फोर्सफुली कराओ। जितना फोर्सफुली आप इससे काम कराओगे, उतना इसको आदत हो जाएगी और ये आपको पॉइंट्स अपने आप निकाल के देगा आपका दिमाग, जो आप एग्जाम में सही ढंग से बेटा लिख पाओ। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। आगे चलें? चलो, आगे चलते हैं। ओवरव्यू की बात करते हैं। अब ना मैं इंडस्ट्री की बात करने वाला हूँ। आज के पूरे सेशन में ना हम होटल इंडस्ट्री जो एस्लेंड में है, उसी की बात करेंगे, उसी के बारे में समझेंगे और एक-एक चल करके ना हम विल ट्राई टू पील ऑफ ईच एंड एवरी लेयर ऑफ ओनियन आउट हियर
जस्ट टू मेक श्योर दैट हम पूरी तरह से इस फ्री सी मटेरियल को अपने खून में समा लें। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। चलो, कोर सर्विस क्या है? मेरी जो कोर सर्विस है जो होटल की, वो क्या है? शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन देने की होती है जो गेस्ट उसके अंदर आते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो सर हमें पता ही है, ये तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। चलो, क्या एडिशनल फैसिलिटीज होती हैं? अब देखो, होटल, अगर मैं एक नॉर्मल पैरालेंस की बात करूँ तो होटल में ऑफ कोर्स आप स्टे के पैसे देते हो, उसके अलावा आप किस चीज़ के पैसे देते हो? आप लेज़र के पैसे देते हो, राइट? जो खाना खाते हो उसके पैसे देते हो, राइट? एंड ऑफ कोर्स जो आपका फैसिलिटीज़, लेट्स से जिम या स्पा एंड सो ऑन सो फोर्थ, सारी फैसिलिटीज़ तो फ्री नहीं होती हैं। तो जो-जो फैसिलिटीज़ फ्री नहीं होती हैं, आप उनके भी पैसे वहाँ दे के आते हो। तो ये मेरी सारी क्या बन जाती हैं? रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन जाती हैं। मैं अगर ऐसे फाइनेंस सोचूँगा, तो इस बिज़नेस में मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या रहने वाली हैं? ये सारी। मेरी क्या रहने वाली है? एक ऑफ कोर्स कोर रहेगी, जो होटल का स्टे रहेगा। जो एडिशनल फैसिलिटीज़ होंगी बच्चे, वो क्या होंगी? रेस्टोरेंट्स एंड बार हो सकते हैं, स्विमिंग पूल्स हो सकते हैं, फिटनेस सेंटर्स हो सकते हैं, स्पा एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक और भी चीज़ बोल देता हूँ बेटे, कई बार ना रेस्टोरेंट में ना शॉप्स होती हैं, सोवेनिर्स की शॉप्स होती हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की, जैसे अच्छी शॉल्स मिलती हैं, फैब्रिक मिलते हैं, शर्ट मिलती हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये भी एक इनकम का ज़रिया है होटल का। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है बेटा? सर, होटल्स के अंदर मैं तो शादी भी करता हूँ सर, मेरी तो शादी भी होटल में होती है सर। बिल्कुल ठीक। होटल में इवेंट्स भी होते हैं, बिज़नेस इवेंट्स भी हो सकते हैं बेटा, पर्सनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। ये भी हमारा एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, जो हमें पता होना चाहिए। Why are we talking on all this? We're talking because we're talking about hotel industry, and we should be knowing what kind of revenue streams and hotel industry might have. And when we know this, we are probably in a better shape to see what would impact my revenue stream, how would my revenue stream get impacted, what should I be doing in case some impact really happens out there, and so on and so forth. The more I would start thinking up around it, the better I am placed in terms of answering that in the exam. Because exam में बच्चे come what may, वो हमारा दिमाग चलाएगा ही चलाएगा कि क्या हम होलिस्टिकली अपने पीएनएल के बारे में सोच रहे हैं। रेवेन्यू साइड मुझे अच्छे से समझ में आती है। मेरे ड्राइवर्स क्या हैं जो रेवेन्यू को इम्पैक्ट करते हैं, मुझे समझ में आते हैं। वो कौन से ड्राइवर्स हैं जो मेरी कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं, क्या वो मुझे समझ में आते हैं? और ये अगर मुझे समझ में आता है, तो क्या मैं अपने आंसर के अंदर उसको सही ढंग से लिख पाता हूँ कि क्या चीज़ें मेरे फ़ेवर में हैं और क्या चीज़ें मेरे फ़ेवर में नहीं हैं। यही एग्ज़ामिनर हमसे प्ले करेगा। हम तो फिनट्रैमर हैं सर, वी आर गोना बी रॉकिंग देयर इन द एग्ज़ाम। आई एम लविंग यू माय फ्रेंड फॉर दैट। दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू हैव एट द बैक ऑफ आवर माइंड। ऑलराइट, हमारे गेस्ट कैसे होते हैं? लेट्स गो एंड सर्कल दिस आउट। हमारे गेस्ट बिज़नेस वाले गेस्ट भी हो सकते हैं, मेरे जैसे जो सुबह जाएँगे, शाम को आ जाएँगे, या एक रात रुकेंगे, अगले दिन क्लास देंगे, फिर वापस आ जाएँगे, या फिर लेज़र वाले जो छुट्टियाँ बहुत मनाते हैं, बिल्कुल ठीक। बिज़नेस गेस्ट, stay for the work purpose, they value what? As a business guest, I would always value the convenience. आई वुड ऑलवेज़ वैल्यू कि मेरी मीटिंग लोकेशंस मेरे पास हों, होटल वहाँ लूँ, जहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मेरे पास में है, जहाँ मैंने लेक्चर देने जाना है, या आपने जहाँ मीटिंग करनी है उसके पास में होटल हो, तो मैं कन्वीनियंस पे मेरा अच्छा खासा ध्यान होता है। तो इसलिए जिसमें मैं लिव वेल की बात करूँ, तो एक एस्पेक्ट मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या लिव वेल मेरा लोकेशनली सही जगह सिचुएटेड है या नहीं। बट उन्होंने पहले बोल दिया दैट यू नो व्हाट, वी आर प्रोबब्ली अ लेज़र होटल काइंड ऑफ अ थिंग। सो प्रोबब्ली हमारी जो प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द लोकेशन पर्सपेक्टिव, वो ऐसी जगह होगी जहाँ लेज़र एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती होंगी। जैसे कि समुद्र के पास हो गया, या जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट के पास हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी बातें ना आपने अपने आप से करनी है बेटा। जितनी बातें बच्चे अपने आप से ऐसी करेगा ना, उतने ज़्यादा नंबर लेके आएगा कशिश। 100% भूमिका जी, नंबर ज़्यादा हो जाएँगे बेटा, जितनी बातें हम अपने आप से इस तरह से करेंगे, जैसे दिशा मैडम हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। चलो आगे चलते हैं। लेज़र गेस्ट की बात करते हैं। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट रह गया। व्हिच इज़ ऑफ बिज़नेस गेस्ट, वो वैल्यू करते हैं प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी बोले तो कि ऑफ कोर्स मेरा जो होटल होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, वहाँ वाई-फाई काम कर रहा होना चाहिए। तो बेसिक है, राइट? अब वो वाई-फाई वाला वो लग्ज़री वाला ज़माना तो है नहीं। वाई-फाई तो बेसिक है, मैं कहीं भी हूँ मेरा वाई-फाई चल करना चाहिए, मेरा बेड ठीक-ठाक होना चाहिए, मेरे वॉशरूम क्लीन होने चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ताकि जो मेरे जो प्रोडक्टिविटी अपनी मेंटेन करके चल रही है वो रहे। चलो, अब लेज़र में आते हैं। अगर मैं लेज़र गेस्ट हूँ तो मैं क्या देखूँगा? क्योंकि मैं पर्सनल स्टे पे आया हूँ, वेकेशन देख रहा हूँ, तो मुझे ऑफ कोर्स एक एटमॉस्फियर चाहिए व्हिच इज़ व्हिच इज़ समथिंग दैट कैन मेक मी रिलैक्स। मेरे को ना
बहस नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल छोटे-छोटे इश्यूज़ नहीं चाहिए जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मुझे रिलैक्स करना है, मुझे एन्जॉय करना है अपना स्टे। आई हैव टू बी मोर प्राइस सेंसिटिव आल्सो। खास तौर पे ना जब आप बिज़नेस ट्रैवल में होते हो ना तो शायद आप प्राइस इतना नहीं देखते हो, लेकिन जब आप लेज़र के लिए जाते हो क्योंकि सारा पैसा आप खुद खर्च रहे होते हो, तो यू ऑलवेज़ थिंक अबाउट कि बॉस मेरा ना जो अ स्टे है ना वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो वहाँ पे ना एक एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है वो है इकोनॉमी। और ये मेरे जो क्वेश्चन मेरा जो एग्ज़ाम में है या जिस इंडस्ट्री से मैं डील कर रहा हूँ या जिस कंपनी से मैं डील कर रहा हूँ, कि वो लेज़र में है, तो ये मुझे मेजरली इम्पैक्ट करने वाला है कि मुझे कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। ऐसी चीज़ मेरे पास अपने आप से दिमाग में आ जानी चाहिए। ऑलराइट, टिपिकली वी वुड हैव लॉन्गर स्टेज़। मैं अगर बिज़नेस के पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, तो जनरली मैं 1 या 2 दिन रुकता हूँ। बट अगर मैं लेज़र की बात करता हूँ, तो मैं 3, 4, 5 दिन रुकना मेरे लिए बड़ा कॉमन हो जाता है। और वो क्योंकि मेरा लॉन्ग स्टे होता है, तो मेरे लिए होटल के पर्सपेक्टिव से ऑल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरा जो कस्टमर है ना, वो किसी बात से नाराज़ ना हो। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो एंड सर्कल आउट द रेटिंग सिस्टम। देखो बेटा, हम ना बिल्कुल डीप डाइव करते जा रहे हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर। हमने देखो शुरुआत कहाँ से करी, अब हम देखो एक-एक एस्पेक्ट को पील ऑफ कर रहे हैं कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें होटल इंडस्ट्री में हो सकती हैं। वी ऑल नो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार काइंड ऑफ होटल्स होते हैं। पता नहीं होते नहीं होते 7 बट यू नो पीपल मैनेज टू कॉल इट टू बी 7 स्टार। बट इस तरह के होटल्स हमारे होते हैं एंड ऑफ कोर्स यू नो देयर इज़ अ रेट, देयर हैज़ टू बी रेटिंग सिस्टम फॉर इट जो डिफाइन करता होगा कि होटल क्यों ऐसे रेटेड है एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन मेरे पास लेवल का है, ये एक 4 स्टार होटल चेन है। दिस समथिंग I have understood any which ways. All right, moving on. मैं रेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो होटल मेसलेट्स आर क्लासिफाइड अंडर द स्टार रेटिंग सिस्टम 1 to 5 wherein we all know कि 5 is the best। अथॉरिटी जो देती है वो नेशनल टूरिस्ट बोर्ड है जो इन स्टार को अवार्ड करती है। एंड ऑफ कोर्स क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया रूम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, रेंज ऑफ फैसिलिटीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। The price is charged for the rooms typically that reflects the star rating. With the higher star luxury hotels, they charge significantly more than the lower star basic hotels. We all understand that. जितने ज्यादा स्टार उतने ज्यादा पैसे। इतना बात हमें समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब आपके प्री-सीड मटेरियल में ना ये चार्ट वहाँ गिवन है। इन द सेंस कि ये वो फैक्टर्स हैं बेटा जो ड्राइव करते हैं क्या 1 स्टार होगा, क्या 2 स्टार होगा, क्या 3 स्टार होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। दे स्पेसिफिकली से कि अगर आपके पास रूम है सिर्फ तो 1 स्टार हो गए। आपके पास प्राइवेट बाथरूम फैसिलिटीज हैं तो आप 2 स्टार हो गए। इन एडिशन टू इट आप आपका ब्रेकफास्ट अवेलेबल है तो आप 2 स्टार रहेंगे एंड देन यू नो दे हैव लाइक रेस्टोरेंट्स हैं और वाइड रेंज ऑफ एमिनिटीज हैं तो आप 3 स्टार हो गए। एंड 4 स्टार के लिए यू नो दे यू हैव इफ यू हैव लेजर you know facilities also for the guests like swimming pool, fitness center, spa तो आप 4 स्टार हो जाते हो। एंड इन एडिशन टू दिस अगर आपने लग्जरी प्रोवाइड कर दी इन टर्म्स ऑफ गिविंग ऑल द सर्विसेज वेयर जैसे शॉफर ड्रिवन हो, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हो, एक अलग ही जो फील आती है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट हैज हैपेंड इन द होटल तो 5 स्टार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दे कैटेगराइजिंग इट बेसिस दिस टेबल एंड इस टेबल के हिसाब से हम 4 स्टार हैं। हम 4 स्टार होटल की एक चेन है जिससे मुझे इस एग्जाम में डील करना है। बात समझ में आती है बेटा? बिल्कुल आती है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की बात करें, अब होटल्स में इंडिपेंडेंट होटल्स भी होते हैं। मैं कई बार क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, कई बार ना इंडिपेंडेंट होटल ज़्यादा अच्छे होते हैं चेन से। ऐसा होता है बिकॉज़ वो एक ही होटल है उस एरिया में और वो होटल ना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है और वो अपने में ही यू नो दे आर रियली गुड एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन यू हैव चेन्स लाइक हिल्टन्स, द रेडिसन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? इनका भी एक चेन चलता है, ब्रांड चलता है। नॉट दैट दे आर बैड, बट दे आर दैट chain doesn't mean that they're always good. There are many hotels in Radisson or in Hilton or in Claridge's or wherever that may not be that good, that may not be that great. But हाँ, उसी एरिया में एक इंडिपेंडेंट होटल भी जो होगा, हो सकता है वो अच्छा हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट हाँ, फ्रॉम द क्वेश्चन पर्सपेक्टिव मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 तरह के होटल्स का बिज़नेस मॉडल्स हैं। इंडिपेंडेंट होटल्स भी होते हैं, चेन्स भी होती है। मैं ऑफ कोर्स एक चेन हूँ बिकॉज़ मेरे पास 35 होटल्स हैं
across the country, and I own the chain of hotels and so on and so forth. अब अगर बात करूँ बेटा मैं अ इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर की, तो इंडिपेंडेंट होटल्स होते हैं। दीज होटल्स हैव सिग्निफिकेंट market segment in Iceland, accounting for 48% of the total guest room supply in 2024 whatever. So it's more like कि जो इंडिपेंडेंट होटल्स हैं उसका जो ओवरऑल मार्केट सेगमेंट का शेयर है in our country is 48%, which is huge, right? Which is a big one. If I really have to see as a hotel businessman, I would say कि काफी बड़ा शेयर है बॉस, काफी बड़ा शेयर है जो जो इंडिविजुअल होटल चेन्स को है, and there's something that sorry, individual hotels को है, chains को नहीं. So which is something that you should be knowing, and of course having that at the back of your mind. Industry experienced recent consolidation due to larger hotels buying the independent small hotels और larger chain acquiring small chain. तो consolidation इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हो रहा है. जैसा मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे एक फीलर आया कि क्या ऐसा एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन आए आपको कि मैं 35 होटल चेन हूँ, व्हिच इज जो मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हूँ, या इस जो मुझे केस दिया गया है, और मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ बाइंग अनदर चेन और बाइंग सम इंडिपेंडेंट होटल्स, तो ऐसा हो सकता है। उस केस में मुझे प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए कि मैं क्या-क्या चीज़ें देखूँगा, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होगा, नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या देखूँगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। We'll talk on that, but I'm just trying to give you something that, something when something like this comes up, you should start thinking about. And जितना आप सोचोगे ना बेटा, उतना आप शायद पॉइंट ढूँढना शुरू करोगे अपने में कि क्या पॉइंट मेरे फेवर में हो सकते हैं, क्या मेरे फेवर में नहीं हो सकते। जैसे ही मैंने ये बोला कि मैं होटल खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले चीज़ समझ में आई कि मेरे को फाइनेंस है या नहीं। तो मुझे सोचना पड़ेगा इस कंपनी का फाइनेंस है। फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि वो मेरे बिज़नेस से अलाइन्ड है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिज़नेस होटल में की सेगमेंट में जाना चाह रहा हूँ। हो भी सकता है। हो सकता है ऐसा जाना चाहूँ, बट क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं है? वी हैव टू असेस दैट। चलो, डिपेंडिंग अपॉन मैं किसी भी डोमेन में जा रहा हूँ, क्या जो होटल में ले रहा हूँ, उसका सही रेवेन्यू और सही प्राइस मुझे मिल रहा है? उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है? कल्चरली वो मेरे से अलाइन्ड तो है या नहीं है? एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब मैंने क्या किया? मैंने एक बात से बात निकाली और मैंने सोचना शुरू कर दिया। ऐसे ही बच्चे आपको अपने साथ करना है। The more you will be able to do it ना, the better answer you will be able to write in the exam. और कई बार हम एग्जाम में एग्जिबिट भी पढ़ते हैं ना बेटा, तब भी हमें ये चीज़ अपने साथ करनी चाहिए कि वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज़ एरियाज़। वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट राइट अवे, रादर देन मैं पॉइंट्स पूरा एग्जिबिट पढ़ने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद फिर सोचना शुरू करो, फिर ढूँढना शुरू करो, नहीं। ये पॉइंट ऑटोमैटिकली आपके दिमाग में आने शुरू हो जाने चाहिए, एंड once you would start getting these thoughts, these ideas, it will be much better for you to really write that in the best possible way. और बेटा इस चीज़ की ना अ, हम रिवीजन बूट कैंप में काफ़ी प्रैक्टिस भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग थ्रू, जब हम हाइलाइट भी करते हैं एरियाज़ एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट दिस इज़ समथिंग दैट more you will practice yourself, the more best you are equipped to really handle that in the exam. So do not undermine the importance of the practice out there. ऑलराइट, अब मैं कंपटीशन की बात करता हूँ। देयर इज एन इंटेंस कंपटीशन प्रेशर बिटवीन द होटल चेन्स। ओके, तो मेरे को स्ट्रेट अवे सिग्नल दे दिया, बहुत तेरे पास बहुत कंपटीशन है। ओके, द देयर इज ए होटल चेन हैव इंक्रीज्ड देयर प्रेजेंस थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑफ कोर्स जितने वो डेवलप कर रहे हैं, या पार्टनरिंग एग्रीमेंट, स्पेशली थ्रू द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। इस पे आएंगे बेटा, हम फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट क्या होते हैं इस पे आएंगे। आई हैव वर्कड पर्सनली आल्सो ऑन दिस, सो आई विल बी एबल टू गिव यू वन सम वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अराउंड दिस। चलो, अब हम आते हैं ओनर मैनेज्ड होटल्स पे और फ्रेंचाइज्ड मॉडल पे। फ्रेंचाइज़ वाला जो मॉडल है ये क्या है? देखो बेटा, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कुछ ऐसे होटल्स होते हैं जो ना सिर्फ़ अपने ही ब्रांड में ऑपरेट करते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ओनर मैनेज्ड होटल का अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्ज़ाम्पल लूँ, तो ओबेरॉय इज़ वन ऑफ द क्लासिकल एग्ज़ाम्पल। ओबेरॉय owns their own hotels and they manage their own hotels. They are really doing that. Uh, and they're really living up to the expectation of the students, or sorry, of the guests who are really visiting out there. So they're really managing their well. On the other hand, if you really talk about chains like Hilton's, like Radisson's, what they're doing is that they're really actually sharing their brands. So they're really looking out for the franchise. अब मेरे पास, मैं रेडिसन हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतनी महंगी महंगी जगह जाके होटल खरीद सकूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जिस जगह जाता हूँ वहां मुझे अच्छा लगता है कोई होटल, तो मैं उन्हें क्या कहता हूँ, एक काम करते हैं, मैं आपको ना रेडिसन का नाम दे देता हूँ।
So I'm giving you the name. You start operating under the name of Redison because, of course, Redison will get good amount of clients, and of course, it will give you a very different brand in the market. Once you have that, probably you'll have more customers and you will have more standards because I will give you the standard to be followed and so on and so forth. Once you follow that, probably you get more business and I'll take share from that business as a percentile. So Redison comes up, shares their brand, give the franchisee to to the hotel. They run it under the name of Redison, and many times you would have seen that some of the hotel owners say that it is Redison plus this, so they also use their name also. So, for example, I don't know if you guys are from Delhi, but in Delhi there are some hotels which are using the name of both. So, for example, there is a hotel in Delhi by the name. It used to be by the name Siddharth. And when JP, of course, shared their name with them, now the name is JP Siddharth. So they're effectively using it by this name. But you get more customers if you have name like JP, Siddharth, and so on. So JP, Redison, Hilton, Claridge's, Leela, and so on and so forth. If you have those kind of names with you, we probably get more and more customers by that brand and so on and so forth. And of course, then the fee sharing happens. Now, one of the thing that is being mentioned out here, I'm going back, that many of the uh, 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 I would say players in the market, they have grown through partnering agreement, especially through franchising. So this can be one of the options, my friend, that can be thrown at you in the exam, wherein you might get to see that you may have to uh, you have given an alternative that how you should be growing yourself, and one of the way to sorry. Kashish, did you say anything? Guys, anybody was saying something? All right. If there is no one saying anything, please keep yourself on mute, guys. I think that will be better for everyone. Okay. Now, coming on, considering we have seen that franchisee agreements are the ones who are leading to the growth, you may get to see a question in the exam that really, revolves around to the fact that can you have more franchisee being done for this company? And if that is the case, what should you be thinking about from the franchisee perspective? आप किसको franchise दोगे, किसको नहीं दोगे, क्या plus देखोगे, क्या minus देखोगे, and so on and so forth. You may have to talk through that when you're thinking about growth of your own hotel operations or the growth of chain that you or hotel chain that you really want to expand through. So very important, guys, that we should have that in our mind. All right. Moving on. Now, this is something that they have specifically demonstrated in your briefing material, which specifically says that there are five largest hotel chain in Iceland, and they are accounting for 23% of the total supply of the hotel room. So five hotels effectively have the 23% of the hotel rooms, and they have given the bifurcation, which is Western, Travelwise, Waycont, Yelton, and Harriott, and these are like the names of those hotels chains, and they're given the star rating, which is 3 star for the first three and 4 star for Yelton and Harriott. And number of rooms, if you will see, they have 504 in Weston, 288 in Travelwise, 174 in Waycont, 115 in Yelton, 90 in Harriott. Okay, that effectively means that 23.1% comes from these five companies, hotel chains. Out of which, if you'll see, the first three are 3 stars. So they are being dominated by 3 star hotels. So this country is being dominated by 3 star hotels. In fact, the maximum number of rooms are also in these three. So 504 plus 288 plus 174. These are the number of rooms that these hotels have. So I would say this country is basically somewhat somewhere uh, dominated by the 3 star hotels. That's how we would be positioning. You never know if down the line in the exam room you get to see a scenario wherein you are a 4 star hotel chain. You might want to explore to get onto the 5 star thing or to get onto the 3 star thing. But if you are getting onto the 3 star thing, do not forget that you have good amount of competition over there, and there are big time names
that are having good amount of rooms out there in the market. And while we say that, do not forget that market somewhere reckons more three-star hotels in the country. And what they have given is that they have given the owner managed or franchised as an option for these hotels. And you would see that three of them were franchised and two of them were owner managed. You never know, guys, if he wants you to think through acquiring a, a owner managed hotel or a franchised hotel, or they want you to extend your franchisee to the other, and so on and so forth. I personally feel that this extension of franchisee model is getting more popular and popular these days. You may get to see something on that in the exam. Who knows that? Is that clear, guys? Yes, sir. Moving on, guys, let's touch upon the revenue streams. But before really going there, any question, anyone, anything that really comes up to anyone's mind, anything that you want to talk on, anybody? Yeah, hi, sir. Good evening. Bhumika, Disha, anyone? Sir, am I audible? Somebody was saying, yes, please. Yeah, sir, I have one question. Say it says that 48% of the hotels are independent. And then it also mentioned that the consolidation is happening. So this 48 is post consolidation or before consolidation? And second thing This is, is even a so. This is. Let me answer this first. This is the situation as on date, Kashish. So, okay, as on date means that whatever has happened has happened. As on date situation is this. okay. And the second part of the question is like, even though the industry is in a mode of consolidation, still the number of independent plus the chains are almost equal, like 48 and 52%. And if 48% independent hotels are running, that means people are not much that interested in respect to having a brand only, or maybe a chain only that will be staying only with the chains or the brands. They're free to explore independent hotels also. Or I would say, and it's a good point, Kashish. Or I would say that people are indifferent. People are indifferent to a brand or to a locally driven name. People are indifferent, which is good, right? Which is good in a way that since people are not that hell-bent, you can stay with your own brand. You don't have to take a franchisee for anyone, which effectively makes you feel that, let's say I'm a live well and I want to sell my franchisee, it's not going to be easy. It's not going to be easy. And let's take it otherwise. Let's say Redison comes up and they want the entire Livewell 35 hotels to run under the Redison's name. Now, Livewell might also think through that just because it is Redison, it may not be a good choice for me because market is not differentiating between a franchising model or a owner-owned hotel model. They are not really differentiating. So that can be one of the negative factor why we should not be considering franchise. Yes, sir. Kashif, did you get that? Yeah, because I was also thinking on the same lines. In order to expand my revenue, if I want to go ahead and have franchisees, there'll be hardly any people interested, or maybe I'll have to spend a lot in order to convince people as to how this franchisee would be beneficial, because otherwise, also people are ready to live there, even if it is not a brand owned. पता है कशिश इसमें ना एक फैक्टर प्ले करता है बेटा वो ये प्ले करता है कि आप किसके पास जा रहे हो मैं मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कोलकाता में ना एक होटल है if anybody is from Kolkata they can very well know it. There is a hotel in Calcutta by the name Kenilworth. आप कभी जाओगे ना आप सर्च करना यू विल गेट टू सी दैट होटल एक्सीलेंट होटल बहुत ही बढ़िया होटल है और वो बहुत ही पुराना होटल है अपने इसी नाम से चल रहा है क्या उसको किसी फ्रेंचाइजर ने कभी अप्रोच नहीं किया होगा कि नहीं मेरा नाम ले लो रेडिसन बन जाओ या जेपी बन जाओ या ये बन जाओ या वो करा होगा शायद बट ओनर डजंट वांट टू डाइल्यूट ओनर वांट्स टू स्टे द वे दे वांट दे से कि नहीं ठीक है यार मेरा नाम बिकता है मेरे पास लोग आते हैं मुझे नहीं परवाह है मुझे नहीं लेना है आई एम ओके विद व्हाट आई एम डूइंग and I'm fine. So be the case.
बट इसको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऑन द अदर हैंड लेट्स से देयर इज अ होटल लेट्स से इन दिल्ली बाय द नेम सिद्धार्थ, एंड सिद्धार्थ को जेपी ने अप्रोच किया कि हम आपको जेपी का नाम दे देते हैं, आप जेपी के नाम से ऑपरेट करो, प्रॉब्ली गेट मोर कस्टमर। अब सिद्धार्थ की मैनेजमेंट ये बोलते हैं कि यार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर मैंने नहीं लिया ना नाम, तो आई विल बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द मार्केट बिकॉज़ देयर आर बिगर प्लेयर गेटिंग इनटू दिस डोमेन, एंड फॉर मी टू कम्पीट आई शुड हैव सम नेम विद मी। सो इट ऑल डिपेंड्स ना कि आप किस होटल की बात कर रहे हो, उसकी मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है कशिश, एंड उसको कैसा अपना फ्यूचर दिख रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। ऐसा नहीं है बेटे कि आप फ्रेंचाइजी बेचने जाओगे नहीं बिकेगा, बट हाँ मेरे को वो कस्टमर ढूंढना है जिसको मेरी जरूरत है। सो यू नेवर नो what will work in your favor, what will not, unless and until you have spoken to someone. Are you getting my point, Kashish? Yes, sir, I got that. So my whole confusion तो started because I thought the market is equally distributed. मैं भी बेटा आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक पकड़ा है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बायस्ड मत हो जाना बेटा इस पॉइंट को लेके। जस्ट बिकॉज़ Okay, मार्केट इक्वल है इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्रेंचाइजी बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगी। मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा बेटा। understood. Okay, sir. दोनों तरफ इट ऑल डिपेंड्स कि मैं किसके पास जाऊँगा, उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या फोरसाइट है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, मैं मीट कर पाऊँगा, नहीं पाऊँगा, होता है गुड, नहीं होता जय माता दी। Done, sir. Any other question, anyone? Please feel free, guys. You know, the more we'll talk, the more we'll exhale out, the better we are positioned in terms of handling that in the exam, beta. Any concern so far? Anything that you want to talk about? Sir, Bhumika, there beta. was a one more stream of revenue which we could include here. Forex conversion. Because it's a leisure hotel. So people would be traveling. Forex conversion also could be one more source of revenue. बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट ऐसी छोटी-छोटी बड़ी सारी और चेन है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें तो मैं बोलता नहीं, जैसे ट्रैवल एजेंट होते हैं, Hmm. टैक्सी सर्विसेज़ हैं। अ, Correct. आजकल आजकल होटल्स ना टूर्स कराते हैं, तो उन टूर्स पे भी उनको शेयरिंग मिलती है। आजकल होटल्स के अंदर एक और भी चीज़ है, वो मेंबरशिप सेल करते हैं आपकी कि Yes, sir. आपने कभी देखा होगा, आपको कॉल भी आता होगा कि वो मेंबरशिप सेल करते हैं, कि उसने बोला कि आप एक काम करो, 20,000 रुपए दो, साल के लिए आप हमारे मेंबर हो, 2 नाइट आपको मिलेंगी, 4 डिनर मिलेंगे, 1 कैंडल लाइट होगा, 1 विद वाइन होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। दे जस्ट वांट टू एनग्रॉस यू एंड सो दैट यू कैन स्टिक ऑन विद द नेम एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अभी वो सारी चीज़ें हैं बेटा जो आएँगी। Okay, sir. मेरे पास ना कशिश एक ऑफर आया था, एंड आई एम टॉकिंग लॉन्ग बैक, 15 साल हो गए इस बात को आज। मेरे पास एक ऑफर आया था बाय द फ्रेंचाइज़र, सॉरी बाय द फ्रेंचाइज़ी। अभी ना Okay. क्या होता है इस इंडस्ट्री में ना एक और भी प्लेयर होता है। जैसे रेडिसन आया बेटा। अब रेडिसन कहता है लेट्स से आप सिद्धार्थ हो, ठीक है? आप सिद्धार्थ होटल हो, मैं रेडिसन हूँ या मैं जेपी हूँ लेट्स से, मैं आया मैंने कहा सिद्धार्थ आप ना जेपी ले लो साथ में, तो जेपी सिद्धार्थ हो जाओगे, तो ना आपके रेवेन्यू बढ़ जाएँगे और हम शेयरिंग करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये फ्रेंचाइज़ी मॉडल हो गया। अब कई बार क्या होता है इनके बीच में ना एक थर्ड पार्टी भी आ जाती है। थर्ड पार्टी क्या है कि मान लेते हैं एक एक होटल चलाने वाला है और एक फ्रेंचाइज़र है। फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइज़ी हो गया। अब होटल को मैनेज करने के लिए एक तीसरा जना आता है। ये कहता है कि एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ से ना होटल मैनेज नहीं हो रहा। वो मैनेज नहीं कर पा रहा ठीक से, काम नहीं कर पा रहा ठीक से। क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा ठीक से या नहीं चल पा रहा, तो उसको कोई फ्रेंचाइज़र अपना नाम देने को तैयार नहीं। तो ये कंपनी आती है, कहती है काम करेंगे, इस होटल को हम चलाएँगे और 5 स्टार स्टैंडर्ड के हिसाब से चलाएँगे, हम करेंगे इस पे काम। अब मैं रेडिसन को लेके आऊँगा, अब रेडिसन इसको अपना नाम देने को तैयार हो जाएगा। ऐसी कंपनीज़ हैं। I don't want to name them right now at this point in time, but there are companies who are just playing the hotel management kind of a profile in the market, who are not owning the building. They just manage the hotel. Alongside, they bring in the name. अब सिद्धार्थ की समस्या खत्म हो गई। सिद्धार्थ कहता है चलो मुझे मैनेज भी नहीं करना।
मैनेज करने के लिए भी XYZ कंपनी आ गई। वो XYZ कंपनी मैनेज करेगी, वही पे एक ब्रांड भी लेके आ रही है बिकॉज़ वैसे तो मेरे पास ब्रांड आता नहीं, क्योंकि मैं इतना अच्छा था ही नहीं अपने ऑपरेशंस के अंदर। तो वो ब्रांड आ गया, मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक शेयर आ जाएगा, जो वो कंपनी जो मैनेज कर रही होगी प्रीमाइसेस या वो होटल के ऑपरेशंस, वो अपना एक शेयर ले लेती है इनके अंदर से। तो वो 2 की जगह 3 हो जाते हैं बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा जी हूँ? सर, जी सर। Now that is not being mentioned out here. Let me tell you this. वो pre-seen material में clearly mentioned नहीं है. But I'm giving you that perspective that that's very common nowadays in the industry. There are people who are doing it. Accor, I can tell you, Accor is doing it. Accor manages various hotels, but they do not have their name to it. Name will be Radisson. The building would be of Ramlal, and management of hotel will be done by Accor. And they all three are sharing the revenue in, of course, different pieces, and so on and so forth. So that's very, again, a very common practice nowadays. Many of the hotels in Delhi NCR, in Mumbai, in Kolkata, in Chennai for that matter, they are running under this model. Many of the hotels, जहाँ पे एक जन नहीं है owner, तीन है owner, and they're sharing revenue. And it is not a common, uncommon practice outside India. Go to London, many of the hotels are doing the same thing. Go to New York, very common. In fact, I have seen companies nowadays approaching the big landowners to say that, you know what, you uh, construct a hotel, and after that, everything is ours, pain is ours, and we'll give you royalty all throughout the life. So let's say this company, XYZ company, they go and say that, you know, you're a big time land owner in Bangalore and you have like big time land over there. I say, you know what? Why are you wasting time and money and so on and so forth? Just, construct a hotel out there. It is my pain to manage it and bring Redison and do that. And do that. And of course, you'll keep getting royalty all throughout because it is gonna be your hotel. And so on and so forth. See how attractive preposition is that is? See how attractive it has become, right? If I have money. Bhumika, you with me on this? Yes, sir. All right. I can tell you this because there was a company, this XYZ company, I was being chosen as the CFO of that company, which I ultimately said, no, I want to join for whatever reason. As 48% of market share lies with independent hotels, 23% lies in hotel chains, which sum to 71, then who holds? No, 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 no. I think you're missing on it. 48% they're saying lies with the independent hotels. And what they have said over here is that these five players owns 23%. Rest of them, they're not spoken out. Of course, rest of them would be rest of them. But only these five, they just wanted to highlight that these five names owns up 23% of the hotel rooms out there. You get that? Atish, you get that? All right, good. Thank you. That helps. All right, let's move on, guys. If there is nothing else, let's just take on and start getting on to the revenue side of it. Now, what is the main source of revenue? We all have discussed it, right? The way I was reading it, it was coming to our mind that what can be the revenue streams? Revenue streams is, of course, the rentals that I would get from the room that I'm renting out. Okay. Food and drink. Yes, sir. And then you have the other services. What? Beauty treatment, spa, business events, wedding, and so on and so forth. So 60 to 70% is room rental. 25 to 35% is food and drinks. 5 to 10% is other services. Then you have non-resident sales. Restaurants and bar, many hotels are open to non-residents, allowing people to stay, not staying in the hotel to purchase food and drink. Okay, very good. Profitability, typical operating profit margin of hotel in Iceland is around 10%, which is not that great, guys. 10% operating margin per se is not that great. But hotel industry wise, if you really talk on the hotel industry, operating margin of 10% is okay to live with.
is okay to live with. The reason I'm trying to tell you and the reason I highlighted something like this is because many of the times we being the finance guy, when we see something like this, we get 10% operating margin is it? Sorry, तो कुछ नहीं है sir. But do not see just the percentage. See it from the perspective of hotel industry. See it from the perspective of industry. 10% operating margin in an hotel industry is not bad. And that is something that is coming as an average out there. Do not forget that. चैलेंजेस की बात कर लेते हैं बेटा कि किस तरह के चैलेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री में इंटेंस कंपटीशन है होटल मस्ट फाइंड वेज टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन गेस्ट अब बेटा जो भी चीज आप पढ़ने वाले हो ना यहाँ पे इतना रियल है ना ये एंड ये यही ब्यूटी है इस एग्जाम की एसएल एग्जाम की ना ये सबसे बड़ी ब्यूटी है बेटा दैट एक्चुअली में ना ये जो बातें करते हैं ना वो इतनी रियल होती हैं जो रियल सिनेरियो में बिल्कुल ही एप्लीकेबल है अब एक अगर मैं एरो सिटी जाता हूँ लेट्स से आप कहीं पे भी जाते हैं अपने आसपास कहीं पे भी होटल देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है होटल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप को दूसरे होटल से डिफरेंशिएट कर पाना कि मैं क्यों बेटर हूँ मेरे में क्या ऐसा है? मेरी कॉस्ट कम है या मेरी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. And that is the reason, we keep scrolling on the internet, finding out on the Make My Trip or on Trivago कि what is the minimum or Agoda, wherever, right? कि मुझे मिनिमम होटल का प्राइस कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम सर्विसेज कहाँ मिलेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये होटल के लिए ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है डिफरेंशिएट कर पाने का. इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड वोलेटिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. डिमांड कभी भी फॉल हो जाती है, किसी भी कारण से फॉल हो जाती है. जैसे ही कोई दुःख की लहर आई कंट्री में या इंडस्ट्री या स्टेट के अंदर, होटल की डिमांड सबसे पहले कम होती है इन टर्म्स ऑफ ऑफ कोर्स बिकॉज़ पीपल आर नॉट विलिंग टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड फॉर स्टेइंग इन अ होटल. जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, लेज़र की लाइन में ये और भी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. इन्फ्लेशन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी इन्फ्लेशन होगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन ना होटल इंडस्ट्री को 2 तरह से इम्पैक्ट कर जाती है. एक तो वो इम्पैक्ट ऐसे करती है कि क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है बेटा, तो प्राइस ज़्यादा होंगे तो क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो लोग कम आना चाहेंगे, कि नहीं भई ये प्राइस ज़्यादा है, मुझे नहीं जाना. दूसरा, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज़ इनके तो कॉस्ट भी बहुत है. इन्फ्लेशन मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं होटल को मैनेज करने के, तो मेरी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है और मेरे रेवेन्यू भी कम हो जाते हैं. सो इफेक्टिवली inflation or is really killing the hotel industry in any way possible. So we should have that in our mind. All right. Then your rising cost, right? So, country has this persistent problem that my operational cost is increasing. और होटल इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी कॉस्ट जो होती है वो मेंटेनेंस और रेनोवेशन होती है. जितनी मर्जी आप अच्छी बिल्डिंग बना लो बेटा, रेनोवेशन और मेंटेनेंस तो नहीं बच सकते ना बेटा, वो तो करना ही करना है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको आपको मैनेज करना ही पड़ेगा कम व्हाट में. स्टाफिंग डिफिकल्टीज़ ये किस इंडस्ट्री में नहीं है, राइट? गेटिंग द राइट पीपल, रिक्रूटिंग देम, रिटेनिंग देम, having the high employee turnover is certainly gonna be a big time problem. Uh, अब वो टर्नओवर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो पे है वो कम है या लॉन्ग आवर्स होते हैं, होटल इंडस्ट्री में तो नाइट आवर्स भी होते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ व्हिच नेगेटिवली हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ. मुझे उस चीज़ से भी जूझना पड़ता है इन दी होटल इंडस्ट्री. और एक और भी चीज़ होती है होटल इंडस्ट्री में, ये जो जॉब्स होती है ना होटल इंडस्ट्री वाली या लेट्स से मैं अकाउंट में फाइनेंस की बात करूँ तो पेरोल की जैसे जॉब है या होटल इंडस्ट्री की कोई भी जॉब, ये सारी ना सारी की सारी जॉब्स जो है ना ये थैंकलेस होती हैं. इसमें आप 10 चीज़ें अच्छी कर लो, तो शायद आपको कस्टमर खुश होके नहीं बोलेगा थैंक यू. बट एक चीज़ बुरी कर दी ना बेटा तो फटाफट से बोलेगा कि नहीं वी आर नॉट हैप्पी विद इट. एंड इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट दैट यू नो वी शुड नो दैट दैट इज़ नॉट द रीज़न व्हाई मेनी ऑफ द टाइम हॉस्पिटैलिटी के अंदर बहुत सारे लोग नहीं भी आना चाहते बिकॉज़ इट इज़ अ थैंकलेस जॉब. 10 चीज़ें अच्छी कर लो, कस्टमर खुश नहीं होगा. एक बुरी कर दो, कस्टमर फटाफट से दुखी हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. सीज़नैलिटी मैं तो खास तौर पे बोलूँगा जिस बिज़नेस में मैं हूँ, मेरी इंडस्ट्री है या मेरी कंपनी है लिविल, मेरी कंपनी क्योंकि लेज़र के अंदर है, तो मुझे तो पता ही है कि बॉस मैं तो सीज़नल इम्पैक्ट होऊँगा ही होऊँगा बिकॉज़ लेज़र एक्टिविटीज़ है तो कुछ पीक टाइम होगा और कुछ ट्रफ का टाइम होगा जहाँ पे मैं ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं कर रहा होऊँगा। मुझे इसके बारे में भी ध्यान देना है। रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग की बात करें, तो होटल कॉन्स्टेंटली फेस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग their revenue and maintaining
their competitiveness in the market, which is very common, right? All of us have to go through. Balance must be made between revenue and occupancy. Of course, मैं revenue ज़्यादा रखूँगा तो मेरी occupancy कम हो जाएगी। मैं occupancy ज़्यादा रखूँगा, revenue कम रखता हूँ तो मेरा total revenue of course मुझे देखना है कि मुझे कितना रखना है। तो मुझे एक बैलेंस, एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है on the revenue and occupancy. And of course, I have audited some of the hotels, guys. आजकल ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो डायनेमिक बेसिस पे ना प्राइसिंग चेंज करते रहते हैं। कि मेरी ऑक्यूपेंसी कितनी है, तो मेरी कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए, कितनी हो चुकी है, तो कितनी होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस कारण से भी ना आप होटल्स के जो रेट्स देखोगे ना, जो ऑनलाइन आप रेट्स भी देखते हो, तो वो हर डे के हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। बिकॉज़ वो डायनामिक प्राइसिंग के ऊपर होते हैं, एआई बेस्ड प्राइसिंग है उनकी, जो ऑक्यूपेंसी से लिंक्ड होती है, सीज़न से लिंक्ड होती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट इज़ अगेन समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन एंड आई वुड से वेरी पर्टिनेंट दीज़ डेज़ दैट इज़ हैपनिंग। जस्ट अ सेकंड गाइस। अ, एक और बना दो। All right, moving on, guys. You know, if I really talk on uh, the threats that this business has, one of the threat that this business has is, I would say, home sharing. Right? Many of the new apps that have come up. You remember what is the most famous app, which really is asking people to share their home and make their home stays? It is one of the most popular Airbnb. Airbnb. Now, Airbnb is a straightaway threat to any hotel business in any country, right? Because वो उसने होटल का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। सो ऐसी जितनी भी चीजें आ रही हैं, दे आर रियली रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर ट्रेडिशनल होटल स्टेज एंड इट्स दे आर द रियल थ्रेट्स फॉर आवर बिजनेस। We should consider Airbnb to be our biggest enemy as far as this exam is concerned. Do not forget that. ऑलराइट, अब हम आते हैं बेटा सस्टेनेबिलिटी पे। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे समहाउ मेरे दिल के बड़ा करीब है और मुझे बेटा ऐसा लगता है कि इस पे ना किसी शेप एंड फॉर्मेट में ना आपको कमेंट करके आना ही आना है। चाहे क्वेश्चन नहीं भी बोल रहा हो ना, सस्टेनेबिलिटी की बात, एनवायरनमेंट की बात, आपने किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में ना बेटा इसको डाल के आना है एग्ज़ाम। उसे बता के आना है कि सर मैं तो फिनक्रामर हूँ, मैं तो स्ट्रेटेजिक बिज़नेस लीडर हूँ और मेरे को पता है सस्टेनेबिलिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की कितनी इम्पोर्टेंस है और देखो मैं इसके बारे में लिख के आऊँगा इन सम शेप और फॉर्मेट। ये बेटा पक्का से लिख के आना है, इसको मिस नहीं करना। गेस्ट का डिसीजन आज की डेट में डिपेंडेंट होता है कि कौन-सा होटल सबसे कम कार्बन इमर्शन करता है, सबसे कम वो वेस्ट की जनरेशन करता है, सबसे कम वो फूड की वेस्टेज करता है। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया इन बीसीजी एंड आई वाज़ पार्ट ऑफ बीसीजी दैट पॉइंट इन टाइम and we were organizing an event in Kerala wherein we wanted to take entire BCG out there for our annual event and so on and so forth. We actually circled down the hotel जो वो क्या करते हैं, जो उनका खाना बच जाता है उसका वो क्या करते हैं, जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स का यूज नहीं करते हैं, जो वेस्ट जो उनका टॉयलेट या यूरिनल वेस्ट होता है उसके वो उनके पास ट्रीटमेंट प्लान्स हैं या नहीं है एंड सो ऑन सो फोर्थ। So many of the companies they have started looking onto that parameter in terms of deciding कि उन्होंने वहां जाना है या नहीं जाना है। They're okay to pay more, बट दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस। और ऐसे कई कई जन आपको मिलेंगे जो इस बारे में बात कर रहे हैं और ये जो चीज है ये डे बाय डे बढ़नी है, ये घटनी नहीं है। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस एज आई बीन सेइंग यस्टरडे आल्सो, the day before yesterday also, कि responsible leadership is going to be playing a very important role in the exam since it is a question of uh, uh, the hotel industry that has really come up to your table. Do not forget that. होटल कितना अच्छा एक्शन ले रहा है इन टर्म्स ऑफ कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज, कितनी ग्रीनरी पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो इट विल सर्टेनली इम्पैक्ट और इट विल समवॉट समवेयर raises the concern in the eyes of an individual or a corporate. Do not forget that. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, देयर आर सम इनोवेशंस एंड automations that are required or that should be somewhat somewhere ensured in this kind of an industry. For example, मुझे अब मोबाइल डिवाइसेस पे बुकिंग चाहिए, मुझे चेक इन चाहिए, चेकआउट चाहिए। आई नीड कि बुकिंग मेरी यहीं से हो जाया करे, फास्ट हो, क्विक हो, एक्यूरेट हो। मेरे पास जो सर्विसेज हैं वो मेरे क्लिक ऑफ द बटन अवेलेबल हों। मेरे पास चैटबॉट्स होने चाहिए जो मुझे हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ कि मैं अच्छा लेट्स से मैं मेघालय में हूँ तो
मेघालय में इस होटल के आस-पास मैं क्या कर सकता हूँ? तो कोई चैटबॉट्स है व्हिच कैन हेल्प मी डिफाइनिंग द प्लेसेस कितने किलोमीटर है, कैसे जा सकता हूँ एंड सो ऑन सो फोर्थ. Do we have the data security and compliances? Big time guys, cyber security can be a big time concern and they have somewhat somewhere given it in the pre-scene material that there are laws in the country which is protecting the personal data. So effectively, you should be very much concerned that something like GDPR, right, wherein you have to prevent the individual data, because होटल के पास तो बहुत सारा इंडिविजुअल डेटा अवेलेबल होता है, राइट? अपने पासपोर्ट की, अपने आधार कार्ड की, अपने पैन कार्ड की आप कॉपी देते हो उन्हें, एंड ऑफ कोर्स you have your credit card details also out there and so on so forth. So उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनके किस तरह के कंट्रोल्स होने चाहिए, किस तरह के कंट्रोल्स उनके एक्चुअली में हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Very important, guys, that we're not missing out on that. See, that is where, Bhumika, Disha, I've been saying that a lot, guys, that Saket, these are the questions, right, that should automatically start coming on your mind. And yeah, these are like real life questions. This is not theoretical. There is no theory around it. But the moment you start thinking about it, start seeing these things, you get to understand that, हाँ, ये सारे तो सिर्फ होने ही होने हैं, ये सारे तो issues है ही हैं. एंड सो ऑन सो फोर्थ. बात समझ में आती है बेटा? बिल्कुल ठीक. अब आते हैं हम यील्ड मैनेजमेंट के ऊपर. यील्ड मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट जो मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके रेवेन्यू और ऑक्यूपेंसी को ना बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं. आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना चुकी हैं और इन होटल्स को जाके वो सॉफ्टवेयर बेचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ डूइंग द डायनामिक प्राइसिंग. सो हमें देखना है कि जो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आने वाला है, क्या वहाँ कोई ऐसी किसी सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन की बात तो नहीं आ रही है? अगर वो आ रही है तो ऑफ कोर्स मुझे क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए? क्या मेरे प्लसेस हैं? क्या मेरे माइनसेस हैं? क्या मेरे पास कॉस्ट है? क्या मेरे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं? क्या फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं? कितना मेरा उसका कैपेक्स रहेगा? कितना उसका ओपेक्स रहेगा? कितना मुझे उसका रिटर्न आएगा? क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है? ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इफ समथिंग लाइक दिस really comes up in the exam. Is that clear, guys? Yes, sir. But coming on, guys, coming on, I think this is one of the. I love this slide. I really love this slide because they have really given you one of the SBR related topic in the SBL by just this by having this slide out there. काफी सारे businesses आजकल क्या करते हैं? वो अपने let's say and sale and lease back, people who have done SPR, FR, they would know that in lessee and lesser accounting, there is a concept of sale and lease back. होटल इंडस्ट्री में ना ये बड़ा स्मार्टली प्ले होता है, wherein you are selling a hotel and then leasing it back. And of course, when you lease it back, you're paying the rental, but you enjoy the big time money because that is something that you've got by selling the hotel. And that's where they're saying that there is a model wherein you want to improve your liquidity and you're doing something like this. Now you may get to see something on sale and lease back in the exam, guys. So, but you don't have to touch upon SBR. They're not going to be asking you the accounting treatment. मुझे SBI या FR की बुक खोल के नहीं बैठनी है. But what is that you should be thinking about from the strategic business leader perspective is something that you have to write down in the exam. So don't really get panicky in terms of thinking about SBR. वहाँ आपसे टेक्निकल ट्रीटमेंट नहीं पूछने वाला है कि मुझे सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग समझा दो, लेट्स सी की एंट्री समझा दो, लेट्स ऑर की एंट्री समझा दो, वो नहीं पूछने वाला है. बट वो इसके सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट पूछता है, ये करना चाहिए, नहीं चाहिए, करने के लिए मुझे क्या चीज़ें देखनी है, क्या नहीं देखनी है, मेरा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्या है, मेरी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. If I really talk about the sale and leaseback agreement, what happens is that hotel company sells the hotel building to a new owner. ठीक है, बिल्कुल उसको बेच दिया. होटल कंपनी रिसीव्स वन ऑफ कैश पेमेंट. अब होटल ने, क्योंकि आप होटल ओनर हो, आपने अपना होटल बेच दिया तो आपके पास कैश आ गया, ऑफ कोर्स. द न्यू ओनर इनिशियली लीजेस द बिल्डिंग बैक टू द होटल कंपनी. अब वो खरीद तो उस न्यू ओनर ने लिया, बट उसने दे हैव लीज्ड इट बैक टू यू एंड यू आर पेइंग द लीज पेमेंट. होटल कंपनी pays the monthly rental payments to the lessor and hotel company continues to operate the hotel business. And of course, जो ओनर होता है उसको रेंटल मिलता रहता है. And then a hotel company continues to operate the business as they were doing, but now उनके पास liquidity आ गया because उन्होंने बेच दिया है और वो over a period of time उसको rental देंगे to the new owner. Very important that we should somewhere have this in our mind that जब इस तरह के एग्रीमेंट में आप जाते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं आफ्टर द एंड ऑफ द लीज. अब लीज तो आपने लिया है ना,
If take the hotel back on lease, तीन ऑप्शन है। एक, आप उसको एक स्टेज के बाद खत्म कर दो और लेसर को वापस दे दो कि अच्छा होटल आपका था, आप लो, मैं चला। दैट इज अदर ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज कि मैं इस होटल को 10 साल बाद, 15 साल बाद खरीद लूंगा वापस। द अदर ऑप्शन इज कि मैं इस लीज को अब हर 10 साल बाद, 15 साल बाद रिन्यू करता रहूंगा। सो मेरे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल होती है इफ आई गेट इनटू दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट। Very important, guys, that do not miss it up with the accounting treatment. Accounting treatment is not going to be relevant out here in the exam. What is going to be relevant out here in the exam is that are you able to do cost benefit analysis कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे फायदा होगा इससे या नहीं होगा। बात समझ में आती है? बिल्कुल, very important, guys. I love this slide because I thought that they played very smartly this time in terms of having a topic like this in the teaching material. All right, some of the success factors that we should be knowing. We should be able to drive forces for the change because there are lot many changes happening in the industry. Technology is one piece of it. We should be able to really be able to uh, come up the curve as much as possible. We should be able to do a lot from the guest experience perspective. सारा कुछ experience का है होटल इंडस्ट्री में। आप जिसको भी अच्छा experience दोगे वो वापस आएगा, नहीं दोगे तो वो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे comfort रखना है, मुझे hygiene रखनी है, सारी facilities available रखनी है, security रखना है, convenience रखना है, location surrounding clean रखनी है, and so on and so forth. Very important, guys. We all know this. We just have to pen it down in some way or the other in the exam. हमें सब कुछ आता है. Some of the general factors, if I really say, on the whole industry perspective, branding plays a very important role. जितना अच्छा brand होगा, जितने अच्छे feedbacks होंगे, reviews होंगे, it plays a very important role. Competitive pricing plays a very important role, and that actually leads you to the KPIs that होटल हैज़ टू मेजर। जितना अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, जितना भी मैंने अच्छा किया, मुझे अल्टीमेटली मेजर करना पड़ेगा कि मैंने मेरा ऑक्यूपेंसी रेट क्या है? कितने मेरे होटल रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम? कितना मेरा एवरेज डेली रेवेन्यू है, एवरेज डेली रेट है उन होटल का? कितना मेरा रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम निकलता है? ऑफ कोर्स कैन सी इट थ्रू अ फॉर्मूला, बट ये सारे मेरे केपीआईज़ हैं व्हिच आई विल बी मेजरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मेरा रेवेन्यू एवरेज डेली रेट जितना हाई होगा वो मेरे लिए उतना अच्छा है, ऑक्यूपेंसी रेट जितना हाई होगा उतना अच्छा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। द मोर यू विल drill down on this, the better it is for you to really understand and assess the performance of any company that really comes on into the exam room for you to really decide on anything or really comment on anything as the case may be. मेरा एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना है, मैं इसको देखता हूँ, जितना ज़्यादा उतना अच्छा मेरे लिए बिकॉज़ उतना रेवेन्यू, मेरा गेस्ट सैटिस्फैक्शन स्कोर कैसा है, मेरे रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, जितना अच्छा उतने ज़्यादा, जितने अच्छे मेरे स्कोर उतना अच्छा मेरा फीडबैक, मेरा एम्प्लॉयी का टर्नओवर कितना है, कितने लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कितनी जल्दी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। मैं इसको भी असेस करूँगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ एम आई डूइंग ऑन द होलिस्टिक बेसिस। इंडस्ट्री बॉडी की बात करिए उसने in the preceding material that there are some industry, there is an industry body which is nothing but the visit excellent that act as the industry body for the tourism industry. They are the ones who are promoting the tourism, marketing excellent, improving the tourist services. They're the one who try to keep a control checks over the industry at large, and of course they do hotel inspections. Standardized inspection criteria is something that they look onto and try to indicate what is going wrong, what is going right. So effectively, from the regulatory body perspective, visit excellent is going to be something that you should be having that at the back of mind. That's pretty much, guys, what I really wanted to give you a flavor of from the industry, flavor of the issue that I really see, flavor of areas that I really see in terms of, hitting, yourself in the exam room. That's what I really wanted to go from the industry perspective that has been given in the preceding material. In addition to what the challenges and the other areas that I really want to talk on. I do wanted to speak on the company side, which is live side, but I didn't wanted to throw a lot of information to you on in a single session. We would be coming up tomorrow with a session where we'll be talking about the company at large. I do want to talk on because there is a lot that I want to talk on from the company's perspective, and I didn't want to bulldoze you with that information. We'll be coming tomorrow at the same time discussing about the company.
on the same lines. What, and of course, we should be talking more like what we did today in terms of understanding and of course exhaling out our our minds and so on and so forth. Very important, guys, that we do not miss tomorrow's session too. Any question, anyone, guys, please exhale out anything that you want to talk on. I'll be more than happy to pick it up, guys. Anyone? Bhumika? Saket? Saket, छोड़ के आना बेटा इस बार एग्जाम, छोड़ के नहीं आना कुछ भी। तो लास्ट टाइम भी बस वो लास्ट वाला क्वेश्चन का थोड़ा-सा से रह गया था। तो बस बेटा वो इस तभी बार मैं बता रहा हूँ, हम जब भी एक क्वेश्चन से प्यार करने लग जाते हैं ना साकेत, वो भी पहला क्वेश्चन होता है जो, बस वही वही फिर नुकसान से देता है बेटा। हो मेरे जाता को है। किस मेरे फिर को से हो पहले जाता किसी क्वेश्चन से प्यार नहीं करना है बेटा। सब सब अच्छे हैं, मैं सबको टाइम दूँगा, सारा पेपर करके आऊँगा, छोड़ के नहीं हाँ। आऊँगा बेटा। हाँ, भूमिका, एनी क्वेश्चन? दिशा? तो सीधे समझ नहीं आया भूमिका, मेरे को क्वेश्चन पूछा या ये बोला कि नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है? कशिश? दिशा? Nothing, sir. All good. I hope, guys, this is adding up to the knowledge base that you're really needing to hit the exam. When we do tomorrow, the company side of it probably will be in a much better shape in terms of handling that in the exam room. Uh, as I said, this presentation will be shared with all of you. Take the best benefit out of it, guys, and I'm sure we should be able to hit this hard as much as possible in the exam room. I'll be happy to take down any questions, guys. Even now, even on the WhatsApp, you can put that on to me, and I'll be more than happy to take it up and answer it for you. Disha, any question before we really wrap this up for you? Nikhil, any question? Anyone? All right. All right, guys. If there's nothing, I'll leave it out there. I'll see you tomorrow, same time, and we'll just wrap this up tomorrow by discussing the company piece also. All right. Thank you very much, guys. Look forward. Keep studying, guys. Keep studying. Thank you very much.